Okay, Vicky, so let's start power plant snap for you. And as you mentioned, you are preparing for campus placement. Campus placement, yes, sir. And for that, you want power plant snap. So my first question is to you. Okay, so what do you understand by power plant? The power plant means, sir, it is just, something which produce some output work for a plant to having just like a coal power plant. In just our main output is we have to produce some electricity. That's why some power plant is. So most of the electricity requirement we meet by using which kind of thermal power, which kind of power plant in our country? Sir, power plant we used power plant based on open Britain cycle, sir. Which particular cycle? Open Britain cycle, sir. 98%. 90-80% of power plant are used to open Britain cycle. 80% of the power plant use Brayton cycle. 90-80%, sir. Usually. So Brayton cycle, where we use Brayton cycle? Open Brayton cycle. Open Britain cycle, sir. We use power plant just like steam power plant, sir. Steam power plants we use Brayton cycle. Are you sure about that? Some. So 1 second, sir. In steam power plant we use Rankine cycle. Rankine cycle, sir. In gas turbines. ब्रेटन साइकिल तो गैस टरबाइन में यूज करते हैं ना. सो सर गैस टरबाइन रैंकाइन में सर स्टीम यूज होता है पंप इज देयर. So most of the electricity requirement we meet by using gas turbine power station or thermal power station. Not sir. It is sir application based na sir. For application we can go whether we are using coal or somehow using turbines or gas turbine power plant, but we use as a fuel coal or natural gas or any other kind of fuel. Fuel, sir. Fuel or somehow coal we can use, sir. What kind of fuel? Open cycle में और closed cycle में what is the difference? What is the difference between open cycle gas turbine and closed cycle gas turbine? Yes, sir. Open cycle, sir. In open cycle only one heat exchanger will be there. But in closed cycle there will be one heat exchanger and one intercooler will be there. Another one is what? Intercooler. What is intercooler? Okay, fine. Okay. Intercooler का क्या use है? What is the advantage? Advantage if you are going for intercooler, then we need very less amount compressor work. It is a beneficial because we are providing less work to the compressor. That's why we use intercooler. Vicky, what is work ratio? Work ratio, sir. W net just like work of turbine plus work of compression divided by work of turbine. That is the ratio of total work to the turbine work. अच्छा, वर्क रेशियो किसके लिए ज्यादा होता है? वर्क रेशियो इज मोर फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट और स्टीम टरबाइन पावर प्लांट. Don't know, sir, particularly. What is load factor? Load factor. No, sir. No, don't know, sir. You heard about reheating? Reheating, yes, sir. So reheating के बारे में बताओ and tell me something about reheat factor also. Reheating, sir, is a process of just like heat exchanger process, sir. And reheating is basically we can do with turbine, and where we have both turbine, just like high pressure turbine and low pressure turbine is there, na? In that application part we use reheat basically. Can you draw the Rankine cycle, Vicky? Can you draw Rankine cycle? Just draw the TS diagram for Rankine cycle. You need to draw the Rankine cycle with the reheating. Reheat Rankine cycle. Okay, sir. Yes, sir. Got it. This one, sir. Just put it above. Reheat Rankine cycle. Yes, sir. This is what TS diagram, na? TS diagram है ये. This is the TS diagram.
तो 6 to 7, ये जो 6 to 7 दिखाया आपने, ये कौन सा प्रोसेस है 6 to 7? Sir, this is low turbine. This is sir isentropic. So I think this will be isentropic. Isentropic. It is a straight line because sir, I draw na. I have to make the dome so far. That's why it is a straight line, sir. Only straight line. Dome draw नहीं करना था. You can take some 2 lines. 2 lines draw कर दे. चलो खैर, anyhow. Okay, sir. Not an issue. अच्छा मेरे को बताओ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैरिंग आउट रीहीटिंग? तो रीहीटिंग साइकिल आपने बनाया जो, इसका एडवांटेज क्या है? रीहीटिंग का एडवांटेज क्या होता है? Reheating for a reheating cycle, we can increase the efficiency of the turbine, sir. But if you are going for the overall efficiency, then it will be less, sir. Only in regeneration we can go for higher efficiency. But in regeneration, just tell me only reheating. Reheating, से efficiency बढ़ेगा या नहीं work will be, sir. So turbine work will be more, sir, which is beneficial for us because turbine work will increase. Yes, sir. What about efficiency? Sir, efficiency decrease, sir. Total efficiency overall decreases. Decrease करेगा. Yes, sir. अच्छा, क्वालिटी ऑफ स्टीम से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी ऑफ स्टीम? Quality of it means, sir, quality of it basically, sir, you are using for our, sir, dryness factor, sir. Quality of it, quality of steam, sir. For in that part, for quality of steam, sir, we can say that if we are going for just like, sir, air conditioning system. If you are going for our if we compare your refrigeration with air conditioning system, so refrigeration is only used for to decrease temperature. But for air conditioning system, the quality of air it also control. That's why we are telling. Boiler accessories क्या होती है विकी? What do you understand by boiler accessories? Boiler, okay, sir. Boiler accessories are, sir, economizer, superheater, and evaporator. Accessories होती है ये, वो economizer, superheater. Economizer, sir. In boiler, it is part of boiler, sir. तो क्या क्या फायदा होता है accessories का? Accessories का, sir, it will go step by step, na. If for consider we are using economizer, sir. After economizer is the boiler. After, sir, from the, because if you are using economizer, just like steam, assume, sir, steam, it is a Rankine cycle, sir. So it is directly go to the pump. It will go and preheat. Fastly it will preheat and go to the economizer, so that our it will easy to, sir, burn, sir. Step by step. न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम कौन सा साइकिल यूज करते हैं? Which particular thermodynamic cycle we use in a nuclear power plant? Nuclear, no, I don't know about nuclear power plant. I don't have study. Let me see. ठीक है. Nuclear power plant. Okay. Okay, let me ask you some more questions. So you prepared only gas power station, gas power turbine, gas power plant, thermal, and wind or solar? No, sir, no, not solar, sir. Only power plant, just like it is in our B.Tech syllabus, no, just like that. And sir, for the more part, I am preparing more in refrigeration, but up to air conditioning, I don't know much about air conditioning. Fine. Can you, my last question is to you, Vicky. Okay. Can you draw the Brayton cycle with the multi-stage expansion and intercooling? Multi-stage expansion and intercooling. Okay, sir. Intercooling. Multi-stage compression followed by intercooling, multi-stage expansion followed by reheating. Let me rectify this. Okay. To draw the Brayton cycle with multi-stage compression followed by multi-stage compressor followed with intercooling. Okay. And multi-stage expansion followed with what? Reheating. Multi-stage expansion, followed with reheating. तो आपको सिर्फ क्या करना है? Just you need to show the single stage reheating. Okay. Plus और single stage compression. Two stage दिखाना है. Okay. Two stage reheating and two stage compression, multi-stage compression. Okay, sir.
Yes, Vicky, done. Yes, sir, one is done. Multi-stage expansion. Multi-stage expansion. Multi-stage expansion with reheating, multi-stage compression with. You can draw it on a TS diagram. Yes, sir. Yes, sir. And just go with the ideal reheating and ideal intercooling. Ideal rating, ideal intercooling. Okay, only you have to draw the cycle diagram and Yes, sir. tell me the advantage of intercooling and reheating. Okay, okay, sir. Okay. Definition. This is an intercooler. This is the intercooler, sir. It is the general case. It is not the ideal one. 3 से 4 कौन सा प्रोसेस है? 3 to 4. Sir, the heat rejection process, sir. There are two stages of heat rejection. One is 1 to 2 and 3 to 4. Constant pressure heat rejection. That is intercooling process. Intercooling. The intercooling process. Heat rejection भी सर वही से होता है. तो आपने मल्टी स्टेज एक्सपेंशन तो दिखाया नहीं. You're taking only one expansion ना 6 to 1. 6 to 1. Expansion of sir. I have to made it one. चलो कोई बात नहीं विकी. अच्छा मेरे को बताओ ये जो प्रोसेस है 5 to 6. Just again put it in front of the camera. 5 to 6. 5 to 6 कौन सा प्रोसेस है? सर ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस. तो इंटरकूलिंग से लाइक सपोज इफ यू ओनली कंसीडर इंटरकूलिंग, तो इंटरकूलिंग से हीट एडिशन पे क्या फर्क पड़ता है? हीट एडिशन बढ़ता है घटता है? इंटरकूलिंग से हीट एडिशन तो सर सेम रहेगा. एडिशन सेम रहेगा. रिजेक्शन तो ज्यादा होता है. एडिशन तो वही हो रहा है ना, ऊपर वाला कांस्टेंट रह रहा है. ओनली नीचे वाले पार्ट में से रिजेक्शन 2 बार हो रहा है, तो रिजेक्शन वाला पार्ट ज्यादा हो रहा है. और इंटरकूलिंग से टरबाइन वर्क पे क्या फर्क पड़ रहा है? लाइक सपोज इफ विल गो विद ओनली दिस डायग्राम. नो चेंज इन टरबाइन वर्क. इट विल रिड्यूस compressor work. It will reduce only compressor work, because if we more focus on compression work na, ultimately our W net is less, because it is W turbine and W compressor. That way we get less power output. That's why if we are going for multi-stage or intercooling computer na, then we have to provide less power on that, less work. ठीक है अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ विकी. अच्छा ये सर बाकी वाला है सर. हाँ. ये सर बाकी क्या है सर? सो ये जो पहले वाला है सर मल्टीपल एक्सपेंशन. और नीचे सेकंड वन है परफेक्ट इंटरकूलर, जिसमें सर 2 और 5 का सेम रहेगा प्रेशर. हाँ ठीक है आई गॉट द आइडिया. थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना है आपको विकी. डायग्राम जब बनाते हो ना कांस्टेंट प्रेशर लाइन, आप कई बार वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखा देते हो. सर थोड़ा सा जल्दी नहीं करना है, आप थोड़ा सा हड़बड़ी में लग रहे हो आज, है ना. ये होता है कई बार, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 4:30 पे आपको, अभी आज मेरे ख्याल से जब भी 3:30 जब भी आपने आज टुडे ओनली यू परचेज द दिस मॉड्यूल ना. टुडे नो सर, प्रीवियसली आई थर्मोडायनामिक्स. अच्छा 1-2 स्नैप लगा चुके हो आप? एक दिया हूं सर थर्मोडायनामिक्स. इन्फॉर्मेशन आपको आज मिली है कि आपको जो सर अभी जस्ट एक घंटा पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिला है. देखो इंटरव्यू में होता क्या है कि आपको बहुत कूल कंफर्ट हो गया आंसर करना होता है. इंटरव्यू में यस योर टेक्निकल नॉलेज मैटर्स, बट वो लास्ट डे पे आप नहीं कर सकते हो. नॉलेज तो उसके बारे में ज्यादा चिंता भी नहीं कर रही. Yes sir. Only you need to focus on whatever you know, that you need to communicate in a very good manner. Very good manner. है ना. तो वो कब कर पाओगे? जब थोड़ा सा कंफर्टेबल कूल होके आंसर करोगे. हड़बड़ी में करोगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे. ठीक है. तो बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं, सुंदर आराम से टाइम लेना है. टेक योर टाइम. दे आर आल्सो गोइंग टू गिव यू दैट मच सफिशिएंट टाइम कि आपको प्रेजेंट कर पाओ. ठीक है.
तो अभी शुरू में आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था कि ब्रेटन साइकिल स्टीम हाँ सर, वो अच्छा सर है ना, तो गैस तो टरबाइन के साथ वो सुनना वाला है, वही। ध्यान से सुनना है। हाँ गैस सर, टरबाइन तो बहुत गैस कम यूज करते हैं। गैस टरबाइन जो प्लांट्स होते हैं दे आर पीक लोड प्लांट, ओके तो उनको बहुत ज्यादा नहीं यूज करते। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ग्लोबली एंड इन आवर कंट्री आल्सो वी मीट बाय यूजिंग थर्मल पावर प्लांट्स ओनली। थर्मल 50 वन 55% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। हालांकि गवर्नमेंट्स आर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग दैट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, ताकि वो 40% तक आ जाए। ओके, बट अभी 50% है। अगर आप बात करोगे 90s में, 2000 में, तब तो 70% तक थर्मल ही रहता था। बट अभी थर्मल का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है डे बाय डे। ओके, बट इट इज दिस टाइम आल्सो इट इज मोर देन 50%, 50 52 55 के आसपास है अभी भी। देन न्यूक्लियर भी है, हाइड्रो भी है, सोलर भी है। कंट्रीब्यूशन सोलर इज आल्सो इंक्रीजिंग। सोलर इज ऑल्सो तो गैस टरबाइन का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है। इट विल नॉट बी मोर देन 3 4 4 5%। ओके। तो सुनना है क्वेश्चन को और तब आंसर करना है। गैस टरबाइन में भी यूज ब्रेटन साइकिल, और ब्रेटन साइकिल भी कौन सा, क्लोज साइकिल। आपने 3 बार आंसर किया, आप बार बार ओपन बोलते रहे। ओपन क्यों यूज करेंगे? ओपन तो हम वहां यूज करते हैं ना जहां पे अपने को जो कॉम्पैक्ट है, साइज जो है बहुत कम चाहिए होता है। इफ यू वांट वेट पर किलोवाट ऑफ द पावर प्रोडक्शन लेस, देन ओनली इट इज गुड टू गो फॉर ओपन पावर प्लांट। ओपन पावर, ओपन जो ब्रेटन साइकिल है दैट इज नॉट मच एफिशिएंट देन क्लोज्ड। क्लोज साइकिल ज्यादा एफिशिएंट है ना। बट क्लोज साइकिल क्या है, बल्कि है, बिकॉज आपको अलग से कंडेंसर लगाना पड़ेगा, हीट एक्सचेंजर लगाना पड़ेगा ऐसे। पावर प्लांट में तो क्लोज साइकिल ही यूज करते हैं। ओपन साइकिल हम यूज करते हैं जो हमारे टर्बो, जो आपके जो एयरक्राफ्ट होता है, जेट इंजन जो होता है, ओके, तो एयरक्राफ्ट में हम यूज करते हैं ओपन साइकिल। पावर प्लांट में नहीं यूज करते ओपन साइकिल। ठीक है। वर्क रेशो नहीं आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट करो। वर्क रेशो, लोड फैक्टर, रीहीट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पढ़ के जानी है। एक्सेसरीज क्या होती है? दीज ऑल आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए पावर प्लांट। बॉयलर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जो भी असेसमेंट हम लगाते हैं, तो उनको हम एक्सेसरीज बोल देते हैं। इकोनोमाइजर है, एयर प्रीहीटर है, सुपर हीटर है। कंट्रोल वर्किंग के लिए जो लगाते हैं उनको बोलते हैं हम माउंटिंग्स। जैसे आपके स्टीम स्टोव वाल्व है, सेफ्टी वाल्व वगैरह, प्रेशर गेजेस हैं, वो सारे के आपके माउंटिंग्स हैं। माउंटिंग्स है। चलिए, और ठीक है, बाकी कुछ चीजें आप आंसर कर पा रहे थे। थोड़ा सा तो आपको सुनना है क्वेश्चन को, देन ओनली यू नीड टू आंसर। आपको चीजें पता है बट मिक्स नहीं करना है उसमें। ठीक है, तो टेक योर टाइम टू थिंक, रिकॉल एंड देन ओनली स्टार्ट आंसरिंग। ओके, इट विल बी गुड टू टेक ए पॉज ऑफ 2-3 सेकंड्स। जैसे ही क्वेश्चन सुनो उसके बाद थोड़ा सा पॉज लो 2-3 सेकंड का, एंड देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। ठीक है। और ठीक है, आप साइकिल वगैरह तो ठीक बना रहे हो, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपोजर तो है कि इंटरकूलिंग क्या होता है, रीहीटिंग क्या होता है। तो रीहीटिंग से बच्चे, रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग से एफिशिएंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। नॉट से कि एफिशिएंसी घटेगा। ब्रेटन साइकिल में एफिशिएंसी घटता है। हाँ सर, वो वाला ब्रेटन साइकिल में। रैंकाइन साइकिल में वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द रीहीट प्रेशर। तो रीहीट प्रेशर अगर आपका 20-25% है ना, 20-25% ऑफ द बॉयलर प्रेशर, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो रैंकाइन में डिपेंड्स ऑन द रीहीट प्रेशर। आप बोल सकते हो सर वी कैन नॉट कमेंट डायरेक्टली ऑन द एफिशिएंसी, एक्चुअली रीहीटिंग वी कैरी आउट टू इंक्रीज द वर्क आउटपुट। रीहीटिंग से टरबाइन वर्क बढ़ जाता है, हीट एडिशन आल्सो इंक्रीजेस, सो एफिशिएंसी कैन इंक्रीज और डिक्रीज सर, इट डिपेंड्स ऑन द रीहीट प्रेशर। इतना बता के छोड़ दो। रीहीट प्रेशर, रीहीट प्रेशर, जो आपने जिस प्रेशर पे आप रीहीट कर रहे हो, वो वाला प्रेशर, रीहीट प्रेशर। तो अगर वो बॉयलर प्रेशर का 20-25% होता है तो एफिशिएंसी बढ़ता है, वहां पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाता है अपने को। बहुत हाई रीहीट प्रेशर पे भी एफिशिएंसी नहीं बढ़ता, बहुत लो पे भी नहीं बढ़ता है ना। ब्रेटन में रीहीटिंग करने से क्या होता है? एफिशिएंसी घटता है, आउटपुट बढ़ेगा, हीट एडिशन भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी घट जाएगा ब्रेटन में। चलो, बाकी ठीक था। आपने साइकिल तो ठीक बना रहे थे आप, इंटरकूलिंग वगैरह का वो साइकिल ठीक था आपका। हीट एडिशन बढ़ जाता है इंटरकूलिंग से, ये ध्यान रखो आप। अच्छा, जो आपने डायग्राम बनाया, अगर आप उसमें इंटरकूलिंग नहीं किया तो प्रोसेस कैसा होगा? वर्टिकल होगा ना। देखो, वर्टिकल होगा। तो जो पॉइंट है जहां से हीट एडिशन भी बढ़ता है, वो इधर होगा, तो हीट एडिशन बढ़ जाएगा। इंटरकूलिंग से हीट एडिशन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा सर। हीट रिजेक्शन भी तो सर बढ़ता है। रिजेक्शन तो क्या है आपका? रिजेक्शन तो आपका जो आप उसमें कर रहे हो, ऑब्वियसली रिजेक्शन ही बढ़ रहा है आपका, बिकॉज आप इंटरकूलिंग कर रहे हो, वन प्रोसेस में जा रहे हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है। बट हीट एडिशन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंक्रीज, वर्क आउटपुट भी आपका बढ़ जाएगा, वर्क आउटपुट भी बढ़ता है। हाँ। चलिए,
तो इन चीजों पे काम करना है थोड़ा सा। एक तो ये जो फैक्टर्स हैं प्लांट से रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट थोड़ा सा पढ़ के रखना। कैपेसिटी पावर प्लांट क्या होते हैं, पीक लोड पावर प्लांट क्या होते हैं, बेस लोड पावर प्लांट क्या होते हैं, लोड कर्व क्या होती है, ओके। ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ के रखना। बॉयलर माउंटिंग एक्सेसरीज आपको पता है, थोड़ा सा पढ़ के रखना कि डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ बॉयलर्स, लाइक हाई प्रेशर बॉयलर क्या होते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होते हैं, सब क्रिटिकल क्या होते हैं, लो प्रेशर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ के रखना, और बाकी ठीक है, कूलिंग टावर का थोड़ा सा पढ़ के रखना, तो पावर प्लांट आपका कवर अप हो जाएगा। और मेरे को थैंक यू सर। ओके।